Assalamu alaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today's lecture is about thermal methods of analysis, and in this particular lecture we shall discuss thermogravimetric analysis or TGA. In general, there are three types of methods that we use for qualitative and quantitative information of matter. First is the spectrochemical methods, in which a spectroscopy is involved, and when we talk about spectroscopy, we deal mainly with types such as flame emission spectroscopy, atomic absorption spectrophotometry, UV, IR and NMR. Second type of methods are called as electroanalytical methods. In these methods we use some sort of electrical signal, and the methods commonly used are potentiometry, conductometry, calorimetry, polarography and amperometry. For example, in potentiometry we use the potential, in conductometry we use the conductance, in calorimetry we use the charge, in polarography the polarity, and in amperometry we measure the ampere or current. Third type is the chromatographic methods. In classical chemistry, these methods were used just for the separation, but now with the addition of advanced instrumentation, now chromatographic methods are analytical methods, and they give us both qualitative and quantitative information. So the various types of chromatographic methods includes column chromatography, paper chromatography, thin layer chromatography, gas chromatography and HPLC. Now the thermoanalytical methods involve thermogravimetric, differential thermal analysis, differential calorimetry and thermometric titrations. In these methods we use the thermal signature of a matter, and we measure various parameters that are listed here. So these are the methods that we are commonly using in today's analytical chemistry in order to deal the problems of everyday life. So in this particular lecture series we will mainly focus on thermoanalytical methods, and these involve thermogravimetric analysis or TGA, differential thermal analysis or DTA, differential scanning calorimetry DSC and thermometric titrations. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये थर्मल मेथड्स ऑफ एनालिसिस जो हैं वो हैं क्या. जब भी हम किसी भी मैटर को किसी टेम्परेचर पर हीट अप करते हैं तो देन इट अंडरगो सर्टन फिजिकल और केमिकल चेंजेस. तो ये जो चेंजेस हैं दैट occur at a particular temperature. For example, melting of some substance, boiling of some substance occurs at particular temperature. Similarly, removal of water, change in the crystal structure and polymerization. Similarly, other chemical reactions such as decomposition of a carbonate or oxidation of a metal, all these reactions occur at a particular temperature range. So if we study these changes along with the measurement of temperature, then that will make the basis of the thermal methods of analysis. So by measuring the temperature at which that physical or chemical change occurs, one can characterize the substance. So अगर हम देखें कि इनमें हमने दो चीज़ों को जो है वो कंबाइन किया है कि हम फिज़िकल चेंज भी नोट कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो टेम्परेचर चेंज भी जो है जिसमें वो फिज़िकल चेंज आई है उनको नोट कर रहे हैं. तो जब हम दोनों टेक्निक्स को या दोनों चेंजेस को ऑब्ज़र्व करके हम कंबाइन करके रिज़ल्ट जो है वो प्रेजेंट करेंगे तो दैट विल बी द बेसिस ऑफ द थर्मल मेथड्स ऑफ एनालिसिस. इससे हमें जो है वो टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है. तो जो नंबर 1 पर इंफॉर्मेशन मिलती है वो है कि हम वन कैन करेक्टराइज द सब्सटेंस. तो हम जो है वो पूरी एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं. सेकेंडली, वी हैव आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द सैंपल. तो देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कोई आपके पास सब्सटेंस है और हमें नहीं पता कि उसका टेम्परेचर जो है वो उसकी स्टेबिलिटी किस टेम्परेचर पर, तो हम क्या करेंगे, हम फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर उसको हीट अप करेंगे. जहाँ पर उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगी वहाँ पर उसका वेट
या उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। तो जिस टेम्परेचर वो होगा उसको हम नोट कर लेंगे। तो हम फिर एक पैरामीटर सेट कर लेंगे नेक्स्ट टाइम कि हमने अब उस चीज़ को जब ट्रीट करना है तो वी विल कीप द टेम्परेचर लो at the temperature at which that change was takes place. So in this way we can have a complete information about the thermal stability of the sample. So heat related जो properties हैं उनको यूज़ करके हमने जो टेक्निक्स डेवलप किए हैं उनमें नंबर 1 पर है थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस और TGA, नंबर 2 पर है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस और DTA, एंड नंबर 3 पर है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री और DSC, एंड नंबर 4 पर है thermometric titrations or TT. So in this particular lecture we will mainly discuss the thermogravimetric analysis. This word is composed of two words. One is thermo, which means to heat, and gravimetry, it means to measure the precipitates. So देखें ग्रेविमेट्री जो है वो एक क्लासिकल टेक्निक है। उसमें हमने क्या करते थे कि जो हमारा मैटर होता था उसके हम प्रेसिपिटेट्स जो है वो बनाते थे और उन प्रेसिपिटेट्स का हम वेट करते थे। तो जब हम उनका वेट करते थे तो दैट वेट वाज गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेसिपिटेट। सो इस टेक्निक में भी हम यही करेंगे कि वी विल मेजर द वेट ऑफ द particular analyte, and we will also measure the temperature by starting from low to high. So by combining both these methods we will generate a new analytical technique or method which is called as thermogravimetric analysis. So the basic principle is that it involves the measurement of a change in weight of a substance when it is heated through a temperature range, preferably at a linear rate. Linear rate means कि हम कम टेम्परेचर से स्टार्ट करेंगे. We can start from 0 or we can start from any temperature and then we will increase it with the linear rate. So अगर हम देखें most of the inorganic and organic things they lose in weight with the passage of heat. बिकॉज उनका वेट जो है वो लॉस क्यों होगा? द वेट लॉस में बी सम ड्यू टू द केमिकल डीकम्पोजिशन, और वो जो केमिकल डीकम्पोजिशन है उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनी है हो सकता है वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिमूव हों इन द फॉर्म ऑफ गैस, और मे बी द रिमूवल ऑफ वाटर मालिक्यूल्स, वाटर ऑफ हाइड्रेशन और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वट एवर. सो जब हम चीज़ों को हीट अप करेंगे तो नॉर्मल प्रैक्टिस में उनका वेट जो है वो लेस होगा, कम होगा. तो किस टेम्परेचर पर कितना वेट कम हुआ है ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हम ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ करेंगे और उस ग्राफ को हम जो है वो थर्मोग्राम भी जो है वो कहते हैं. तो इस टेक्निक की जो बेस थी वो ग्रेविमेट्री थी. इनफैक्ट ग्रेविमेट्री में जो प्रॉब्लम्स आए थे वही रीज़न बनी है थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस की डिस्कवरी के लिए. द रीज़न इज़ दैट कि इन क्लासिकल इरा जब हम प्रेसिपिटेट्स का जो है वो वेट करते थे तो हम उनको ड्राई करते थे एट नॉट अ सेटल्ड टेम्परेचर बट ऑन हीट एंड ट्रायल बेसिस. तो अगर दो एनालिस्ट जो हैं वो किसी भी चीज़ का जो है वो ड्राइंग कर रहे हैं तो जो टेम्परेचर था वो डिफरेंट था. जब टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो एक में ज़्यादा हीटिंग होती थी, दूसरे में कम होती थी. तो रिज़ल्ट जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन और जो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन थी वो दोनों के रिज़ल्ट्स जो थे वो आपस में मैच नहीं करते थे. सो इसके लिए फिर एक यूनिवर्सल टेम्परेचर जो है वो हर एक मैटर की नेचर के लिहाज से जो है वो सेटल्ड किया गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एफर्ट वाज मेड बाय क्लॉड डोवल and who obtained thermogravimetric curves for a number of precedents including their drying temperatures and solve the problem. So क्लॉड डोवल ने पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट जो है वो प्रोग्राम दिया था एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच कि हम हर एक मैटर की नेचर के लिहाज से उसको हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर पर हीट अप करेंगे, ना उससे कम पर हीट करेंगे ना उससे ज़्यादा पर करेंगे. प्रॉपर ड्राइंग होगी, प्रॉपर जो है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मैटर की मिलेगी. So the basic methodology of this method is that we measure the change in the weight of a substance as its temperature is increased,
Practically, the non-weight of a substance is heated through a predetermined temperature range and simultaneously its weights and temperatures are recorded. So जो इंस्ट्रूमेंट हम इसमें वेट के लिए और साइमल्टेनियसली टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करेंगे, दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड एज थर्मोग्राविमीटर और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज थर्मो बैलेंस और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज थर्मोग्राविमेट्रिक बैलेंस. तो इसमें हम देखते हैं कि जो एक पर्टिकुलर थर्मोग्राम मिलता है, व्हाट्स इट्स नेचर. So if we see here, this is a particular thermogram of calcium oxalate. So इसमें अगर हम देखें कि y एक्सिस पर जो है वो वेट है और जो x एक्सिस पर लीनियरली जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है. तो यहाँ पर वेट है मिलीग्राम्स में. तो अगर आप देखें कि एज़ वी हैव स्टार्टेड टेम्परेचर, तो वेट जो था वो 20 मिलीग्राम था कैल्शियम ऑक्सालेट का, और जब जो टेम्परेचर पहुँचा है 1000, तो जो वेट रह गया था अप्रॉक्सीमेटली वो 8 to 9 मिलीग्राम जो है वो रह गया था. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एनालाइट का वेट है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ कर रहा है, तो वो 20 से जो है वो 8 मिलीग्राम हो गया. तो 20 से 8 मिलीग्राम क्यों हुआ? बिकॉज इट हैज़ एमिटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो जब वो लॉट ऑफ थिंग्स जो है वो उसमें से रिमूव हुई हैं, तो उसका वेट जो है वो कॉन्सेंट्रेटली लूज़ हुआ. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ कैल्शियम ऑक्सालेट, जब आप उसको हीट अप करेंगे फ्रॉम 100 to 220 सेंटीग्रेड, तो इसमें से जो वाटर के मालिक्यूल्स हैं वो रिलीज़ होंगे. सो इफ़ यू सी हियर कि इन द रेंज ऑफ 200 वाटर जो है वो रिमूव हुआ है और सिर्फ हमारे पास अब कैल्शियम ऑक्सालेट जो है वो बाकी रहा है. दिस हाइड्रेटेड वाटर इज़ रिमूव. तो अब हमारे पास सिर्फ कैल्शियम ऑक्सालेट है. तो जब हम टेम्परेचर जो है वो फर्दर इंक्रीज़ करेंगे फ्रॉम 400 to 500, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें से फर्दर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव हुई है. कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों रिमूव हुई है? क्योंकि कैल्शियम ऑक्सालेट जो है वो डिकम्पोज हो गया इनटू कैल्शियम कार्बोनेट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ गैस, इट इज़ रिमूव. तो वेट जो है वो फर्दर ड्रॉप हुआ है इन 400 to 500 टेम्परेचर रेंज. सो नेक्स्ट जब हम टेम्परेचर रेंज जो है उसमें फर्दर जो है वो बढ़ाते हैं और इसको करते हैं 660 से 850, तो जो रिमेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट था इट फर्दर डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो अब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और फर्दर जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से वेट जो है वो लेस हुआ है. अब हमारे पास सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो इनऑर्गेनिक एक मटेरियल बच गया है. अब हमने 1000 सेंटीग्रेड तक भी इस टेम्परेचर तक जो है वो हम लेके गए हैं, बट उसका वेट जो है वो अब कांस्टेंट हो गया बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड फर्दर डिकम्पोज इनटू नथिंग. सो अगर हम देखें तो ये हमें एक थर्मोग्राम जो है वो मिला है. इसमें 2 जोन्स हैं. वन इज़ द हॉरिजेंटल पोर्शन ऑफ दिस कर्व. सो इफ़ वी सी हियर, दिस इज़ द हॉरिजेंटल पोर्शन and then we see here this is the horizontal portion. Similarly, a horizontal portion is here and then horizontal portion is there. So these horizontal portions are called as zones of stability, whereas the vertical portions, these all vertical portions, they are called as zones of instability. तो इसका ये मतलब है कि इन टेम्परेचर रेंजेस में लाइक 200 to 400 सेंटीग्रेड, सिमिलरली 500 to 600 सेंटीग्रेड एंड देन 850 to onwards, there is no decomposition takes place in the molecule. So अगर हमने इस कैल्शियम ऑक्सालेट को कहीं स्टोर करना है या इसको हमने स्टेबल रखना है या इसकी हमने डिकम्पोजिशन को बचाना है, तो वी मस्ट स्टोर इट इन दीज टेम्परेचर रेंजेस. तो इन टेम्परेचर रेंजेस पर हमें इसकी कोई डिकम्पोजिशन जो है वो नहीं होगी एंड इट विल बी क्वाइट स्टेबल. सो इससे हमें स्टेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमने किन कंडीशंस में इस कंपाउंड को स्टेबल बनाना है. और जो वर्टिकल पोर्शंस हैं उनमें इनमें से कंटिन्यूसली जो है वो कोई ना कोई सब्सटेंस जो है वो एमिट हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रही है, कोई वाटर रिमूव हो रहा है, कोई गैस रिमूव हो रही है. तो हम इन टेम्परेचर्स में इसमें कोई वर्किंग जो है वो नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल इन दीज टेम्परेचर्स. सो एक तो हमें यहाँ पर स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है. सेकेंड, दिस इज़ द
particular signature curve of calcium oxalate in this temperature range. तो कंपाउंड की प्योरिटी का भी हमें पता लग जाएगा, उसकी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन का भी पता लग जाएगा। कैल्शियम ऑक्सालेट के अलावा और कोई कंपाउंड जो है वो इस तरह का हीट सिग्नेचर जो है वो हमें नहीं देगा। तो कंपाउंड्स की प्योरिटी, उनकी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो भी हमें इस थर्मोग्राम से जो है वो मिलती है। So this was all about today's lecture, which was mainly focused on thermogravimetric analysis. In the next lecture, we will discuss about the basic instrumentation of thermogravimetric analysis, or we will discuss the basic outline of thermogravimetric balance or thermogravimetric instrument. I hope you will understand all this in this lecture. However, if you have any confusion, let me know in the comment section. I will reply you as soon as possible to the best of my knowledge. Okay, thank you. Allah Hafiz.